Lecture is for class 8, fourth lecture for the chapter metal and non-metals. So now I am going to start reactivity series of metal. Already in last 3 lectures various concept was given, physical property of metal and non-metal was given, chemical property was also given, concept about corrosion was given. So this is one of the important topic. Reactivity means how metal participate in a reaction. Generally in group 1 metal means lithium, sodium, potassium, cesium, ruthenium, francium. They are most reactive because group 1 metal having one electron in its outermost shell, and that electron can easily donate and can participate in a chemical reaction. So you are already taught how to write electronic configuration. So when you write the electronic configuration, so you come to know the number of electron in its outermost shell. So if the number of electron is 1 or 2, that metals are generally what? Reactive, very reactive. So group 1 metal are reactive, then group 2 are a little bit less reactive, because in group 2 metal, for example calcium, magnesium, they have 2 electrons in its outermost shell, and group 13 or 3, the boron, aluminum, they have 3 electrons in its outermost shell. These are the general metal, and we have some transition metal, for example scandium, manganese, iron, zinc, copper, and they have little bit different concept. Lots of property are there, transition property are there, inert pair effect is there. So you will get details regarding that in class 12, mainly in D block element. So here simply I would like to give the series. Here only the main metals are given here in this series, because you are in class 8. So in this series the potassium is most reactive. Potassium. That's why now potassium cannot keep in air openly. It is generally react with oxygen without any catalyst. So due to its reactivity, it should kept in sodium and potassium are generally kept in kerosene oil, because kerosene oil are non-metallic liquid. So organic, they have covalent bond. So metal generally do not react with covalent compound. So next one is sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, tin, Sn. Symbol is written. Lead means Pb. Symbol of lead is Pb. Hydrogen. In book name is written. Lead. It is written as lead. Hydrogen, copper, mercury. Hg means mercury. Silver. Ag means silver. Au means gold. Platinum. So here now gold and platinum are more stable. Reactivity in a decreasing order of reactivity. Decreasing order of reactivity. So gold and platinum are least reactive, and potassium, sodium are most reactive. So ये सब का जो रिएक्शन होगा ना, फर्स्ट होगा, ये सब का रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है. गोल्ड को आप गोल्ड का जो ज्वेलरी बनता है वो पानी के साथ भी मिक्स होने से हम लोग का जो खाम निकालते हैं वो भी एसिटिक होता है थोड़ा सा, उससे भी रिएक्शन नहीं करता है, कलर खराब नहीं होता है. गोल्ड मोस्ट रिएक्टिव है, एंड ड्यू टू रिएक्टिविटी गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है. कम रिएक्टिविटी होने का वजह से किसी तरह से रिएक्शन नहीं करता है, एंड रिएक्शन नहीं करने का वजह से इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, जैसा ऐसा रह जाता है. दैट्स व्हाई गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉस्टली. So you have to know this series, you have to remember, because now we have to perform some displacement reaction. For example now silver, if silver metal is kept in zinc sulfate solution, then no reaction, because now silver जो है सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जिंक से नीचे है, मींस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव
जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो सिल्वर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता बिकॉज ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, SO4 को नहीं ला सकता है, सो रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिल्वर का एक पॉट है, सिल्वर मेटल से बना हुआ एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोग जिंक सल्फेट रख सकते हैं। कैन वी कीप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर मेटल? यस, बिकॉज सिल्वर मेटल में रखने से जिंक सल्फेट का साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिल्वर का मेटल का जो कंटेनर है वो खराब नहीं होगा। एंड देन नेक्स्ट इज व्हेन जिंक मेटल इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन व्हाट विल हैपन? It give zinc sulfate solution and copper metal is released because zinc जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछने से जिंक का कंटेनर है, जिंक मेटल से बना हुआ एक कंटेनर है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन व्हाट? जिंक मेटल कंटेनर, नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ सिल्वर मेटल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नो रिएक्शन बिकॉज सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, सिल्वर कम रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। सो किससे रिएक्शन होगा, किससे रिएक्शन नहीं होगा? सो यू कैन फाइंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम व्हाट? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मैं फिर से बताता हूँ, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दीज आर द लीस्ट कम रिएक्टिव मेटल। Now in the last part of the chapter we have to know details about use of metals and non-metals. So first of all I would like to explain about use of metals. First one is iron and steel. Steel is one of the main alloy of what? Iron. Okay, actually iron जो है ना डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है क्योंकि आयरन थोड़ा रिएक्टिव है एंड आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन गिव्स रस्ट। सो आयरन का जो मशीनरी डायरेक्ट होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आयरन को थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है एंड दैट एलॉय इज कॉल्ड स्टील। सो दोनों का यूज ऑलमोस्ट सेम है। सो मेनली हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल्स, गेट लोहा का जो आयरन का जो स्टील का गेट बनता है एंड विंडो, खिड़की वगैरह भी आजकल आयरन का स्टील से बनता है। डोर ग्रिल्स, नट बोल्ट जो होता है, नट बोल्ट, रेलवे ट्रैक, ये सब जो मशीनरी होता है, इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, दे आर मेड बाय जनरली आयरन और व्हाट? स्टील। अगेन आई टेल यू, स्टील इज द वन ऑफ द मेजर एलॉय ऑफ व्हाट? आयरन। स्टील का एक्चुअली रस्टिंग कम होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका, ये नॉन थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, एलॉय बनाने का वजह से ये कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। जनरली जो इलेक्ट्रिक वायर होता है दे आर मेड बाय कॉपर, इलेक्ट्रिक केबल्स आर मेड बाय कॉपर, कॉइल जो कॉइल होता है, हीटर में जो कॉइल होता है दे आर मेड बाय कॉपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, एरोप्लेन का बहुत सारा पार्ट्स दे आर मेड बाय एल्यूमिनियम का बर्तन वगैरह बनता है, इंटेंसिल आर मेड बाय जनरली एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज जिंक इज यूज्ड मेनली गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। गैल्वेनाइजिंग मतलब जो टीन होता है, टीन का ऊपर जिंक का पॉलिश किया जाता है नॉन रास्टिंग के लिए, नॉन रास्टिंग नहीं होने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज मरकरी mercury is used in thermometer, you already know about that I think. And one of the major use of mercury is amalgam is the major alloy of what? Mercury, and that is used for dental filling. दांत जो corrosion होता है, दांत में खा जाता है तो उसको fill करने के लिए amalgam use होता है। And next one is lead are used in generally in batteries, making batteries. And gold, silver and platinum, these metal are generally costly and stable non-reactive metal, that's why they are used for making jewelry, mainly jewelry. And the major use of what? Non-metals, first one is diamond. Diamond actually one of the non-metal but
having a brightness nature. Due to transparent nature and high refractive index, they are bright, and their diamond are costly, and diamond are used for making jewelry, expensive jewelry. And due to very hard, diamond are used for cutting tools, काटने के लिए tools यूज होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक होता है, ब्लैक, दैट इज मेड बाय ग्रेफाइट. ग्रेफाइट और भी यूज है लिब्रिकेंट. ग्रेफाइट लुब्रिकेंट जो ग्रीस वगैरह है व मोबिल, उसमें ग्रेफाइट वगैरह होता है. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एमोनिया, बहुत सारा एमोनिया हो गया आपका, मिथाइल अल्कोहल, दे आर जनरली मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन. रिएक्टेंट होता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट हाइड्रोजन. एंड नेक्स्ट वन सल्फर. सल्फर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरी यूज के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम व्हाट, सल्फर. मैस्टिक वगैरह भी बनता है. सिलिकॉन. सिलिकॉन इज वन ऑफ द सेमीकंडक्टर, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो मोबाइल का अंदर जो होता है, मेमोरी चिप्स, दे आर मेड बाय जनरली सिलिकॉन. एंड नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में यूज होता है फॉस्फोरस. मैस्टिक, मैस्टिक बनाने के लिए यूज होता है फॉस्फोरस. एंड नेक्स्ट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन बहुत सारा फर्टिलाइजर बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज होता है. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमोस्फेयर. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर बनता है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं. ऑक्सीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कंटेंट इन एयर. विदाउट ऑक्सीजन no living body can live. So this is all about what the chapter metal and non-metals. Try करो, you are in class 8, try to understand as much as possible, because you will get a good support in higher classes. मैंने chemically and physically I just tried to give lots of concept, and chemical reaction वगैरह कैसे हो रहा है उसको थोड़ा देखना. What will be the product, that is generally depend on valency, and try to write electronic configuration up to zinc. At least try, you have enough time. हाइड्रोजन टू जिंक ट्राई करो, समझने की कोशिश करो कि किसका कितना वैलेंसी है, हु इज मेटल, हु इज नॉन मेटल, हु जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन, हु जनरली यूज टू गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, कब शेयरिंग होगा, कब गेन होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट ए good concept if you go through it. And metal reactivity series को भी देखो. Okay, fine. I will start another chapter in chemistry part.